virtually with you. So we were introduced to CBT yesterday. We will move further. We will continue into CBT again today. But before that, with your beautiful, chumkili, bright smiles on your heavily thinking faces, I'd love to see you all on video. I'm sure Swinjin would love to see everybody, all the beautiful faces on the screen. Can you hear me? Yes. Who's talking? I'm Shubha here. Can you hear me? Yes, Shubhaji. Hi, how are you doing, Meenakshi? Good, great. Thanks for asking. Yeah. I'm trying to actually just give me some time. Yeah. What was your question? I said, I hope we are all done with our evening ritual of cookies, bhajia, and tea. Or if it's coffee, that too is fine. If we are done with that, we are here with a fresh mind for newer learning. That will be great. I welcome you all today too. There were certain things that were discussed yesterday, and we will continue beyond yesterday's conscious thinking today. We will learn some more of this. So, as if there are any of the old participants of these courses, you would agree with me that all her courses are about connecting before teaching. That's her mantra, and that's what you feel in any of her courses. Because I think beyond any kind of knowledge, beyond any kind of big concepts, the human connection is very, very important to be established first. So we will also try and connect beyond all the teachings that will happen on this virtual platform. Yes? All right. So if you're all completely 100% present here with your notebooks, with your pen, and if you're on the laptop, wonderful. If you're on the phone, try being on the laptop. The learning becomes a little easier. And if that is the state, do put in a thumbs up. You may use the emoji. You may put it in the chat box. Thank you. Thank you for the hearts and the thumbs ups. You're all in here. Great. I see many more have joined us. Sakshi, welcome. Vaishali, Dilroop, Purva, Nidhi, Manjuji. Good evening, everyone. Good evening, Himanshi, Richa. Welcome. Let's continue beyond the conscious thinking of yesterday. Let's connect heart to heart as we are on this platform. CBT is all about that, isn't it? So I worked out a few definitions of CBT myself. Is there anybody who has a unique CBT definition for themselves?
need not necessarily be about the psychological concept. Just like my cookies, bhajia, and tea. Does anybody have any interesting CBT acronym here? Hi, Nidhi. Thanks for the hearts. CBT is sorry, Nidhi is our creative coach, creativity coach. Let's see your creativity. Give us a very funky kind of acronym with CBT. Srinji says, chal baate tikaएं. Okay, chal baate tikaएं. Wow. So, Nidhi, what's yours? Okay, thinking. Anybody else till then? कौन बहन पहले टॉकिंग करेगी? I hope there's no phonics educator over here who will check me for my wrong phonics. Hi, Purvaji. Would you like to try out? Yeah. Yeah. Changing bad thoughts. Very Awesome. Changing bad thoughts. Wonderful. Wonderful. Yes, Shubhaji. For me, CBT is not, breaking down the CBT, but CBT ... knock knock. Are you there? Okay. CBT ... knock knock. Are you there? Good. Great. Okay, Richaji. Yes. What's your CBT? For me, it is change begins today. Awesome. I love that one. Change begins today. If only we would learn to live like that. Change begins today and not wait for the next moment, what Srinji was talking also about yesterday. Awesome. Awesome. Change begins today. Even Srinji has acknowledged that. Yeah. Anybody else? Your definition of CBT. In a humorous way, Meenakshi ji. हाँ, humorous भी चलेगा मैम. Humorous चलेगा ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. Certified बकैती trainer. That's a good one. Certified Bhakti trainer. Great. Because जिनको हमारी बात समझ में नहीं आती है, जिनको forcefully बिठाया जाता है, उनके लिए तो हम वही हैं. नहीं, this is a very good one. You know, I'm sure very many communication coaches will now call themselves certified Bhakti trainer. That's a good one. And on a very positive note, control, then breathe, and then Control. try again. Very nice. Awesome, awesome, awesome. Control, breathe, and try again. How much I'm learning from everyone today. Change begins today. Control, breathe, and try again. Wonderful, wonderful. Yes, any more CBTs coming here? It's 6:30, but we'll wait for a few more minutes for people to join in because it's still a Friday, a working day, and they may have just come home wanting to So I connect. got another one, control brain traffic. You completely summarized CBT, Richaji. Great. Control brain traffic. Awesome. Swinji का एक ही दिन में इतना impact हो जाता है, which is visible over here. Control brain traffic. Anybody else? Anything? Hi, Meenakshi ma'am. Hi, ma'am. जी बताएं. Meenakshi ji. जी, actually, I will add one word. C for challenges, B for begin, T for to vanish. Challenges begin to vanish. Okay, with CBT, challenges With CBT. begin to vanish. Great, great, great. With CBT, challenges begin to vanish. That's a wonderful one, Meenakshi ji. Thank you. Thank you, thank you, thank you. So I was trying to bring all faces on gallery, but I think the controls are with Srinji. We won't be able to do that. But we have already started playing a game, which I wanted to talk about. That was catch, bounce, and throw. So suppose there is an imaginary ball in my hand and I throw it at someone, then that person speaks about it. Thank you, Srinji, for the gallery view. Now I can see all the faces.
So we will continue with our own definition of CBT. I'm going to throw the virtual ball now at some specific person by taking that person's name. So get ready with your definition of CBT. That person catches it, gives his or her definition of CBT, and then throws it at somebody else by taking that person's name, right? Are you in with me in this game? Great, great, great. So let's move with Meenakshi ji, who said, Meenakshi ji, come again with your definition of CBT. You had said Challenges begin to vanish. challenges begin to vanish, and from there, this ball now goes to Shraddha. Arre baap re. Catch it, Shraddha. Okay, I got it. Now, what's your definition of CBT? Don't think too much, just speak. Yeah. So whatever I understood till now is conscious bano. Conscious bano, subconscious को भगाओ type. मतलब ठीक है, I am not getting, but conscious bano, CB. बिल्कुल ठीक है. Conscious बनो, thinking में मत फंसो. Great, great, great. So who do you want to throw the ball at now? Himanshi. Himanshi. I wrote control backward thoughts. Don't control backward thoughts, right? Great. Himanshi, where is the ball going now? To Swati. Okay, Swati, catch the ball. It'd be fun when you actually try throwing the ball and the other person catches it. Right. Actually, ma'am, I was thinking like care begins today in the terms of mind care. So someone spoke change begins today. So the last two words we were thinking the same. Care begins today. How beautifully we are all deriving our own meaning of this seemingly heavy concept, but it's actually so simple. And we have all Right. kind of So- summed it up very nicely. Where is the ball going, Swati? Ball is going to Annie. Annie. Okay, caught the ball. Yes. My definition of CBT would be chalo bhagaye tangles. Chalo bhagaye Tangles. So tangles. according to me, I've seen problems as tangled up ropes. Okay, great, So- wonderful. We'll untangle them. So chalo bhagaye tangles. Chalo bhagaye tangles. You see, a fresh face brings a fresh perspective completely. Love you, Annie, for that. Yes, where is the ball going now? I will like Meenakshi ji, Dilroop has written a very good thing. Okay. Annie, Yes, just Dilroop, throw if the you ball could to speak. Dilroop so she can speak. Sure, Roop. I wrote it in the chat. Coping, but terrifically. Coping, but terrifically. Wow. Because Terrific sometimes we end coping. up coping, but in ways that are very incorrect or harmful to us. Hmm. So, coping कर रहे हैं, but terrifically कर रहे हैं. Coping, but terrifically. Very good, Dilroop. Where is the ball going now? I would like to give it to Mandeep. Mandeep ji, got caught as soon as you appeared on the screen. Yes, what's your definition of CBT? Richa ji is coming with better and better definitions. Yes, Mandeep ji, you're mute. Unmute yourself, please. Hello. Yeah. Yeah. I'm audible. Yes, yes, yes. Yeah, I said I'll need a few seconds because I just joined and I was not even aware what's going on. All right, no worries. We are just giving our own definition of this concept CBT. We began with cookies, bhajia, and tea. Okay. And we gave some very, very deep definitions also. We got some funny ones also. One was very nicely appearing on the screen just now. I'll read from the chat, which Nidhi was giving. Nidhi said, Hughley Broadcasting Team. certified Baketi trainer, and then
Chugli broadcasting. Chugli broadcasting. She says Chugli broadcasting team. And of course, Rita ji is giving us all a very deep ones. She says, choose better thoughts and change begins today, those kinds. So what's your definition of CBT? It does not have to be intellectual at all. Whatever comes offhand in your mind about C, B, and T, Hindi mein ho, English mein ho, Punjabi ch bhi chalega. We have a terrific person here, Manju Janu ma'am. I'm just expecting something very, very Okay, I'm waiting for her. Manju ma'am, I'm not able to see you on the screen. Yes, Manju ma'am, आपकी डिमांड आई है? Yes, Manju ma'am. Good evening. You are mute, ma'am. Please unmute yourself. Yeah, I joined. After that, I logged out due to some reason, and then I joined again. But it was very hilarious how CBTs, explained. So मैंने भी सोचा थोड़ा मैं भी कुछ करूं, but मैं कुछ कर नहीं पाई. तो मेरे को C for चलो, B का चलो बहुत ठोकते हैं. चलो, okay, चलो बहाने ठोकते हैं मैम. चलो बहाने ठोकते हैं. दिल को, ब्रेन को थोड़ा बहला लेते हैं. चलो बहुत ठोकते हैं या Okay. something. Good. No, nice, very nice. But yeah, it's Great. all of them. They came out with very innovative ideas. Lovely. Great. So चलो we are बहुत ठोके. चलो बहुत चलो बहुत ठोके. ठोके. Yeah, बार ठोके जब तक ये Yes. सुधर चलो ना जाए. बार बार ठोके जब तक सुधर ना जाए. I think we are good 50 right now. And Swinji, with your permission, should we move into day 2? Yes, we always have punctual Yes. people. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. So before we welcome our mentor, our guide, the awesome Swinji, the sweet Swinji, the so loving, I call her my soulmate also, Swinji. We have kind of revisited, if you have realized, our yesterday's learning. And now we are going, yesterday we learned about that there are thoughts in our mind and there are varied kinds of thoughts, but we also know that thoughts are not facts. So we are today going to continue beyond those thoughts. That's what I believe we are going to be doing today. So before I welcome Swinji, let me just introduce myself in a few words. So my name is Meenakshi Dhingra. I am a mind design and happiness coach. And I really, really use CBT that I have learned from Swinji. So I after having learned it from her, my experience says that CBT is not something that is a box of tools. Instead, it is a way of life. And so it is, I feel, very important, like we are supposed to take healthy food all through life so that we do not fall sick easily. And if at all we fall sick, we are able to handle it and recover from it easily. CBT should also be, I think, practiced in the same manner always, not when a problem comes only then, but even before that. If it is taught to the children also, it becomes a way of life. It becomes a life skills. That will be wonderful. So, and that's what I have experienced in Swinji's CBT classes. And I'm sure you're going to experience that too. There isn't much of theory, though, of course, on the screen there will be a lot of theory, but be all ears, because the practical examples that Swinji talks about is where the real learning will happen. So let us all put our hands together and welcome our mentor for the day, Swinji. Awaiting your guidance on CBT. जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख।
आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। Hello, good evening, everyone, and welcome to day 2. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, Thank you ma'am. so much. Good evening, ma'am. Very Thank good you evening, so ma'am. much. Very good evening. Thank you so much, Meenakshi ma'am, for your beautiful, energetic kick to the show. And this is the best thing I love about the mind-blowing Shiros. They have all the power, they have all the skill, they have all the humor. They can put on the table whenever it is required. So wonderful applause for everyone showing up today. आपको पता है there were how many people in the group? किसी ने notice किया number? Now there are 52. 52. Not in this group, in WhatsApp group. Achha. Yeah, They ma'am. were around 120, I think. I'm not sure. 104, 104. 100 plus. 104. And out of 104, including me, 52 have showed up. This is the difference between crowd and change makers. So एक बार जबरदस्त तालियां हो जाएं change makers के लिए, who take decision in their hand and whenever कुछ सोच लेते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते। अदरवाइज बहानों की भीड़ में छुपने वाले बहुत लोग हैं। और बदलाव कहाँ आता है? जहां बहाने खत्म हो जाते हैं। जब लब कहने को आतुर हो और सुनने वाला कोई ना हो, जब सोच के धागे उलझे हों और बुनने वाला कोई ना हो, जब रिश्ते टूट के चिटके हों और सपने टूट के बिखरे हों, पर चुनने वाला कोई ना हो, उदास ना होना, अकेले मत समझना। Call us, come to us. We will help you to change your life's approach. Because we are the Mind Mentors, where we coach your सोच। Your सोच। और अगर आप भी ये पावर अचीव करना चाहते हैं, आप भी अगर ये पावर यूज करना चाहते हैं खुद के लिए, दूसरों के लिए, नियर एंड डियर वंस के लिए, टू कंट्रीब्यूट योर बेस्ट for the world and society around, then you are at the right place. Again, congratulations and well done for your decision. Yesterday we were talking about automatic negative thoughts. कोई शक? किसी को कोई शक है? कल जो हमने डिस्कस किया और जो कुछ भी हमने कल डिस्कस किया, हम उस पॉइंट तक पहुंच गए थे कि जब भी जिंदगी में कुछ अटपटा होता है, जब भी जिंदगी हमें अपनी प्रॉब्लम्स के बीच में अच्छे से घेर लेती है और हम पूरी तरह से क्रश हो जाते हैं, नेगेटिव सिनेरियो, हार्ट ब्रेक्स, shattered dreams, and all the efforts going into waste, तब ऑटोमेटिकली ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन माइंड कैसे ऑपरेट करता है? वो एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। पर उन्हीं में से कुछ लोग बाउंस बैक कर जाते हैं, चाहे वो खुद स्ट्रगल करते हैं, चाहे वो किसी की हेल्प लेते हैं, चाहे वो अपने आप के ऊपर काम करते हैं। लेकिन जो नहीं कर पाते, जो वहीं गिरे पड़े रहते हैं और ये सोचते हैं कि हम लोग तो
स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हैं, हम लोग तो स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, लाइक वट एवर अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म। एंड बहुत सारे लोग एक ऐसी एडिक्शन का शिकार हैं जो किसी को पता ही नहीं चलता, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट। एंड आई गेस बहुत कम लोगों ने ये टर्म सुनी होगी, टॉक्सिक पॉजिटिविटी। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब बढ़िया है, अरे कुछ नहीं, सब ठीक है। फेक स्माइल, फेक स्ट्रेंथ, pretending about that everything is fine, but deep down they are sinking, they are shattering, they are breaking, they are fighting with their own spirit, they are fighting with their own existence. Am I right? और इस चक्कर में कोपिंग जो है वो इतनी एडिक्टिव हो जाती है कि लाइफ का चेंज होना इम्पॉसिबल लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि चेंज हो नहीं सकता, पर स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही है, कुछ नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, और कुछ बदलने के लिए तो फिर बदलाव लाना पड़ता है। लेकिन कंफर्ट जोन एडिक्शंस का इतना हो जाता है, चाहे वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी की है या फिर वो अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म की है। एंड देन वी आर ब्लेमिंग पीपल अराउंड अस, वी आर ब्लेमिंग environment, we are blaming scenarios, even we are blaming self. And trust me, एक shift तो आता है when coping becomes our personality. Coping terrifically तो it's okay Dilruk, but if somebody is coping terribly, there is a little bit of difference between terrific and terrible. So terrific coping means you are trying to evolve yourself. You are trying to cope up with enough strength, intelligence, wisdom, and available resources. But terrible coping is when without taking any positive step, you are trying to jailify the situation and jailify your own self. Okay. So you stop building and start professionally managing stress instead. और धीरे धीरे लोग अपने आप को कई बार काम में झोंक देते हैं। आज हम बात कर रहे थे अपने एक ट्रेनिंग बैच में कि जब भी मुझे स्ट्रेस होता है मैं कपड़े धोने लगती हूँ। किसी ने बोला कि मैं उसके अलमारियां खोल के सफाई करने लगती हूँ। दिस इज नॉट ए हेल्दी मैकेनिज्म, दिस इज जस्ट डिस्ट्रैक्टिंग अवे फ्रॉम स्ट्रेस एंड गिविंग इट चांस टू इंक्रीज। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप मुझे बताइए, फीवर होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? फीवर आना गुड थिंग और बैड थिंग? गुड थिंग। गुड थिंग। श्रुति जी, क्यों होती है गुड थिंग? क्योंकि उससे फिर हमारे को पता चलता है कि हमारे बॉडी सिम्टम दे रही है हमें कि भाई आप में कोई प्रॉब्लम है, या मेरी बॉडी हेल्दी और समझदार है, उसको पता लग रहा है कि कोई जर्म्स आ रहे हैं, और हेल्दी जर्म्स जो हमारे हेल्दी बैक्टीरियाज हैं वो किसी इन्फेक्शियस बैक्टीरिया की एंट्री पे अवेयर और अलर्ट हो गए और उनसे फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू सेव आवर बॉडी, और फिर फाइट करने से मैम फॉर मी इट्स लाइक रिलैक्सेशन टाइम। अब कोई 4 दिन मुझसे तंग करने भी नहीं आएगा, कोई मुझे छेड़ेगा भी नहीं, कोई मुझसे कुछ मांगेगा भी नहीं। एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड एट होम, जिसकी हर चीज के लिए आई एम आंसरेबल, बट दोस 4-5 days आई एम एट पीस and I can do my inner work which I am not able to do at times. Exactly. So see, blessing in disguise वाला काम करती हैं creative निधि, because so many times we females, when we are so much overloaded, exhausted with responsibilities, we have to take that escapism. But escapism, after all, it's not healthy. Now, whenever we are talking about high fever, अक्सर हमारे घरों में क्या होता है कि जैसे ही 100 या 101 बुखार आया, इट्स नथिंग सीरियस, बहुत ही सोचे समझे प्लान्ड वेरी वेल कंडीशनड तरीके हैं। पैरासीटामोल होती थी, फिर उसके बाद कोई एक डिस्प्रिन आई, फिर उसके बाद कोई एक और मेडिसिन आई, मेटोफॉर आई, खा लो और बुखार उतर जाता है। हफ्ते बाद फिर से फीवर आया, अब बॉडी फिर से चिल्ला रही है समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, पिल लो, फीवर डाउन।
3rd वीक में फीवर नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। लेकिन ना तो शरीर काम कर रहा है ना दिमाग काम कर रहा है। वी आर ड्रेन्ड, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, टायर्ड, फुल ऑफ प्रेशर, फुल ऑफ एक्स इन आवर बॉडी। फिर हार के हम जाते हैं डॉक्टर के पास। अब मेडिकल प्रोफेशनल्स दे नो क्या क्या रायता फैला के आए हो, तो आप बताते भी हो कि डॉक्टर साहब 2 हफ्ते से फीवर बीच बीच में आ रहा था, मैं ऐसे ऐसे दवाई खा रही थी या खा रहा था। तब डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट करते हैं? यस प्लीज। पैथोलॉजिकल टेस्ट। यस श्रद्धा मैम, थैंक यू। तब वो कहते हैं कि एक ब्लड टेस्ट करा के आइए, फिर देखेंगे इन्फेक्शन क्या है और कहाँ कहाँ है। इट मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू ट्रीट फीवर जो हम कर रहे थे, दे आर ट्राइंग टू ट्रीट रूट कॉज ऑफ दैट फीवर, जिसके चक्कर में हमने 15 दिन खराब किए। बीच बीच में काम पे भी असर हुआ होगा, शरीर पे भी असर हुआ, मन पे भी असर हुआ, और अब स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक का लंबा दौर चलेगा। और वो जरूरी है ताकि हम रूट कॉजेस पे काम कर सकें। इसी तरह से हम भी काम को, बिजी शेड्यूल को, इधर उधर ध्यान भटकाने को कई बार अपना ट्रीटमेंट या सॉल्यूशन मान लेते हैं, और सर्वाइवल मोड के पिल खा के बुखार ठीक करने को हम अपना पर्पस समझ लेते हैं हीलिंग का। सॉरी, धीरे धीरे एंटायर सिस्टम हमारा डिफेंस मैकेनिज्म का शिकार हो जाता है। डायरेक्शन नहीं मिलती, राइट ट्रीटमेंट नहीं मिलता, राइट सॉल्यूशन नहीं मिलता, राइट ट्रांसफॉर्मेशन या राइट हीलिंग नहीं आती, और फिर अलग अलग टोने टूट के बाबा, झाड़ पोंछ, ग्रह शांति, ज्योतिष कहीं तक जाके फिर हम वापस उसी गटर में फंसे होते हैं, क्योंकि हमारे पास हीलिंग का टाइम नहीं है। हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, 2 मिनट्स मैगी। तो इसीलिए मेंटल हेल्थ को लेके, स्ट्रेस को लेके जब भी कोई इस तरह का डिटीरियोरेशन हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे माइंड को अटैक करता है, हम भी मेडिसिन की तरफ पहले जाते हैं, क्योंकि मेडिसिन खाने से हमारा जो डिस्टर्ब बिहेवियर है, लो मूड है या एग्रेसिव मूड है, वो शांत हो जाता है। हम थोड़े बैलेंस मूड में आ जाते हैं। मूड स्केल भी डिस्कस करेंगे हम आज। तो बैलेंस मूड में आते हैं हम, फिर काम में जुट जाते हैं। जैसे बुखार हटने पे हम काम में जुट गए थे, लेकिन मूड फिर से कभी उधर खिसक जाता है, कभी उधर खिसक जाता है। फिर से हम दवाइयां खाते जा रहे हैं, और अंदर ही अंदर वो जो हमारे वायरस है, इन्फेक्शन है, जो हमारे मेंटल हेल्थ के बाद धीरे धीरे फिजिकल हेल्थ को भी डिटीरियोरेट कर रहा है, उसी के चक्कर में हम स्टक हो जाते हैं। और कई बार ऐसा हम जानबूझ के नहीं कर रहे होते, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर। तो सीबीटी की जब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, पहले ही दिन हम 5 पावरफुल स्टेप्स बताते हैं कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें इस तरह के नेगेटिव अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म में जाने से रोकते हैं। और एक और सवाल होता है क्लाइंट का, पार्टिसिपेंट का, अगर आप कोच हो, काउंसलर हो, कितना टाइम लगेगा, कितने सेशन लगेंगे? उसका भी जवाब इन्हीं 5 स्टेप्स में होता है। इंटरेस्टिंगली ये 5 स्टेप ए से शुरू होते हैं, इसीलिए हम इन्हें 5 A's कहते हैं। लेकिन ये बोनस उन्हीं को मिलता है जो सीबीटी का ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो ज्वाइन करते हैं। ठीक है। और जब हमारे पास अचानक से कोई अवेकन होके, एनलाइटन होके आता है, या फिर कोई ऑलरेडी अवेयर है कि अब तो थेरेपी, काउंसलिंग या टॉक के लिए जाना पड़ेगा, अब तो किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना, तब शुरू होता है एक्चुअली सीबीटी का प्रोसेस। सीबीटी बिकॉज जैसे हम कल बात कर रहे थे कि ये हमारे थॉट पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। उसके लिए जब भी हम इस प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल पर्सन हमें चाहिए होता है जो हमें फैसिलिटेट कर सके टू स्टार्ट दैट हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, टू फाइंड द solution of our problem, which is actually hacking my peace, hacking my happiness, hacking my
लाइफ एंड इट्स सक्सेस। अब उसमें दो अलग अलग लोग होते हैं, एक होते हैं साइकेट्रिस्ट, एक होते हैं साइकोलॉजिस्ट। कोई बताएगा क्या डिफरेंस है? Yes, What is ma'am, the जो difference? psychiatrists हैं, they are like medical professionals who can prescribe medicines. Yes, very good. But they are not therapists. Psychologists are who are therapists. Yes, very good. Thank you, Anuji, for giving this very meaningful insight कि by default behavior बन जाता है escapism automated mode पे। Very good, बहुत ही बढ़िया। So डेफिनेटली बिल्कुल सही कहा स्वाति जी ने कि साइकेट्रिस्ट दे आर वेरी हाईली प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स इन मेडिसिन। आप मैक्सिमम ऑब्जर्व करते होंगे या किसी से सुना होगा कि जब उनके पास जाते हैं तो वो उठा के आंख भी नहीं देखते हैं, दे आर जस्ट लिसनिंग क्या क्या हो रहा है, hearing the symptoms and writing down the medicines. Nothing bad in that. They are in that expert in that area. हम साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ यस, बहुत कई जो सुलझे हुए अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं उन्होंने काउंसलर्स की टीम रखी होती है, वो पहले भी उनसे एक आधा सेशन लगवाते हैं, फिर उस फीडबैक पे, ताकि उनका टाइम कम लगे, वो पहले से वो फीडबैक लेते हैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले। और कई लोग जो हैं वो बाद में भी काउंसलिंग देते हैं अपनी टीम के थ्रू। रेयरली कोई साइकेट्रिस्ट होते हैं हु आर सो मच पैशनेट कि वो नंबर ऑफ केसेस कितने देखने हैं वो नहीं देखते, जो भी आया है उसको थोड़ा टाइम भी देना है, थोड़ा सा हौसला भी देना है और दवाई की प्रिस्क्रिप्शन भी देनी है। साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स एंड थेरेपिस्ट, ये भी अलग अलग कैटेगरी होती है। काउंसलिंग इज जस्ट मोटिवेशन, सुन के बाद कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, अभी आप ब्राइटर साइड देखो। जो हम कहते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो काउंसलिंग एक्सपर्ट होते हैं इन डिफरेंट एरिया। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, क्राइम साइकोलॉजिस्ट, है ना, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं। तो अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए साइकोलॉजिस्ट को स्पेशलाइजेशन में केटर किया जाता है, उनके इंटरेस्ट के और चॉइस के हिसाब से। इंडस्ट्रियल के लिए अलग साइकोलॉजिस्ट हैं, चिल्ड्रन के लिए अलग साइकोलॉजिस्ट हैं। और जो लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, मतलब जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को भी देख सकते हैं, साइकोटिक एंड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स, प्लस वो चाइल्ड साइकोलॉजी भी करते हैं, पेरेंट काउंसलिंग भी करते हैं, फैमिली काउंसलिंग भी करते हैं, दे आर कॉल्ड साइकोथेरेपिस्ट। As you are talking, listening to one. With my diverse area of experience over the period of 35 years, I have been well trained and groomed in different modalities. और CBT एक ऐसी अम्ब्रेला टर्म है जिसमें आप कोई भी किसी भी तरह का इश्यू जो है वो सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए हमने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इसे सबसे ज्यादा पावर और इम्पोर्टेंस दी है। ये किसी भी एक नॉर्मल ग्रेजुएट को साइकोलॉजिस्ट के तौर पे शुरुआत में तैयार कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स नहीं टैकल करते अगर वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पढ़े हैं तब आप डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर जो अदर सीवियर मॉडल्स हैं वो आप हैंडल कर सकते हो। सीबीटी जरूर सबको ट्रीट करती है, पर आप इसे सिर्फ काउंसलिंग साइकोलॉजी में एज ए टेक्निक यूज कर पाओगे, आप अपने आप को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं लिख पाते। क्लियर? तो आप काउंसलिंग एक्सपर्ट, सीबीटी प्रैक्टिशनर ये जरूर लिख सकते हो, चाहे आप किसी भी तरह से इसको यूज करते हो, रिलेशनशिप काउंसलिंग में, अपने हीलिंग प्रैक्टिस में, अपनी किसी भी तरह की एजुकेशन में, एज ए कोच, पेरेंटिंग कोच, टीन कोच, एडोलेसेंट कोच, एजुकेटर। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ स्किल होना। डिग्री कोई भी हो, एरिया कोई भी हो,
मेरा यकीन है मानना कि जब तक आप में ये वाले पॉइंट्स नहीं है तब तक आपको इस फील्ड में नहीं आना चाहिए। अगर आप एम्पैथेटिक लिसनर नहीं हो, आप लोगों को बिना जज किए उनकी परेशानियां सुन सकते हो और आप उनकी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ मेंटेन कर सकते हो कि जो सुना वो यहीं हजम हो गया। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन में आके भी ये मेंटेन नहीं कर पाते। दे गिव जनरलाइज स्टेटमेंट्स, ओहो ये कितनी गलत बात है, ये अच्छी बात थोड़ी है अगर आप ऐसे करते हो। आजकल के बच्चों का तो पूछो ही मत। तुम यंगस्टर्स को तो पता नहीं कहाँ ले जाके बंद किया जाए ताकि तुम अपनी हरकतें बंद करो। मुझे क्लाइंट्स आके बताते हैं, यंग बच्चे, के हमें ऐसे सुनने को मिलता है। स्कूल काउंसलर के पास बच्चे जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। ऐसा एक पैनिक अटैक और सेल्फ हार्म का केस मेरे पास आया, सीवियरली डैमेज्ड बच्चा, जिसने बोला कि मैंने गलती की स्कूल काउंसलर के पास जाके। उन्होंने मेरी बात सुनी, बड़ी कनिंग सी स्माइल दी और मुझे भेज दिया। ही डेफिनेटली शेयर्ड कि मेरा कोई क्रश है क्लास में और आई रियली वॉन्ट केयर अबाउट हर, बट शी हैज गिवन सम नेगेटिव स्टेटमेंट्स अबाउट मी एंड आई एम नॉट एबल टू फोकस इन माय स्टडीज। ये बात जाके उन काउंसलर मैम ने स्टाफ रूम में 2-3 टीचर्स के साथ डिस्कस की कि फलां फलां क्लास का बच्चा आज ये आया था, पता है उसके दिमाग में क्या क्या चलता है। एक टीचर की बिटिया उन्हीं की क्लास की स्टूडेंट थी, उसने जाके अपनी बिटिया को बोला, तुम्हें पता है तुम्हारा एक क्लासमेट अपनी दूसरी क्लासमेट के बारे में क्या सोचता है। उसने जाके उसको पूछा, उसने उसको क्लास में चांटा लगाया सबके सामने। इतनी छोटी सी गलती कि आपने किसी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को बिना सोचे समझे पास ऑन किया। And he was bullied, abused, trashed in school. He stopped going to school. And then constantly anxiety और panic attacks के साथ उसको बहुत ही मुश्किल आ रही थी और उसने सेल्फ हार्म करना शुरू किया जब वो मेरे पास आए। So I always request people, आप मोस्ट वेलकम। हमें एक बहुत ही बड़े समूह की, बहुत सारे सिपाहियों की जरूरत है क्योंकि जंग बहुत मुश्किल हो रही है मेंटल हेल्थ की, लेकिन उसके लिए प्रॉपर मन बना के आइए। अब कोई पूछता है कि मैम मेडिसिन जरूरी है या काउंसलिंग। मैं सीबीटी का जो बेसिक चीजें हैं पहले वो बताना चाह रही हूँ। मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा कीन हैं कि फटाफट जल्दी जल्दी सॉल्यूशंस और टेक्निक्स पे आ जाएं। मेडिसिन डिपेंड करता है, जब भी हम हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज कि हम जो भी हमारे पास आए, किसी भी एज, किसी भी कैटेगरी से, किसी भी प्रॉब्लम को लेके, हम उनके पास्ट, प्रेजेंट, खुद के बारे में, उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट, पेरेंटिंग, फैमिली एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, स्कूल एनवायरनमेंट, उनका बॉन्ड किसके साथ अच्छा है, किसके साथ बुरा है, किसका उन पे इन्फ्लुएंस है, किससे वो डरते हैं, व्हाट इज देयर स्ट्रेंथ, व्हाट इज देयर वीकनेस, उनका टेम्परामेंट क्या है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, ये समझने की कोशिश करती हैं। और फिर ये सारी इंफॉर्मेशन लेते लेते हम लोग जब उन्हें कुछ सॉल्यूशंस और टेक्निक्स बताते हैं, एंजाइटी है तो क्या करना है, डिप्रेशन है तो क्या करना है, ट्रॉमेटिक केस है तो कहाँ से शुरू करना है, और वो घर जाके अगर वो टेक्निक्स, वो सॉल्यूशंस, स्ट्रेटजीज अप्लाई नहीं कर पाते, they are keen, they are willing, they are coming to us for that program only, but they are not able to put all the efforts and energy to invest in their healing। चाहते हुए भी 1 और 2 सेशंस के बीच बीच में हमें आइडिया हो जाता है कि वो रिसीव तो कर रहे हैं पर वो रिटेन नहीं कर पा रहे, रिकॉल नहीं कर पा रहे। उनका जो कल हम केमिकल लोचा डिस्कस कर रहे थे, रिमेंबर ऑल द केमिकल लोचा, ब्रेन हॉर्मोन्स, वो सब इतना ज्यादा डिस्टर्ब है, इतने ज्यादा स्ट्रेस हॉर्मोन्स भर गए हैं कि पॉजिटिव हॉर्मोन्स ब्रेन बना ही नहीं रहा और कोई इनिशिएटिव, कोई मोटिवेशन करने का मन ही नहीं है, उठने का मन नहीं है, वॉक पे जाने का मन नहीं है, और हम उन्हें सजेशंस पे सजेशंस दे जा रहे हैं। तो हमें सजेशन नहीं देना है, हमें ये फैसिलिटेशन देना है कि क्या वो उस सिचुएशन, उस स्थिति में है कि वो हमारी बात का अमल कर पाए। नहीं कर पा रहे, इसका मतलब जिस तरह से विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, आयरन की कमी है,
तब हिम्मत नहीं होती शरीर में, लेथार्जिक हो जाता है शरीर, तब हमें सप्लीमेंट खाने पड़ते हैं ताकि हम उठ के थोड़ा काम तो कर पाए। काम करेंगे तो अच्छा लगेगा, वॉक पे जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो उस वॉक पे जाने की, कोई पॉजिटिव बिहेवियर करने की हिम्मत के लिए हम उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं, नॉट फॉर साइकोटिक और साइकियाट्रिक मेडिसिन। समटाइम्स वी नीड ओनली मूड स्टेबलाइजर्स। और ये भी एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की पहचान है कि वो उतनी ही मेडिसिन या सप्लीमेंट या ब्रेन सप्लीमेंट चाहिए, मूड स्टेबलाइजर चाहिए या कोई साइकोटिक ट्रीटमेंट चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन डायग्नोसिस, वो दे। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सिस्टम बहुत खराब है। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस, लर्निंग और ऑब्जर्वेशन से बताऊं, जो एक फैक्ट है, more than 90% of psychological problems, they don't need any medicine. Most of them, 90%. 10% clinically driven chronic and serious psychotic disorders need medicine. हैरानी हो रही है ना आपको? क्योंकि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? More than 90% people who are struggling with their mental health, they are only relying on medicines. आप पीजीआई चले जाओ, आप डीएमसी लुधियाना चले जाओ, आप फोर्टिस चले जाओ, मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट जहां जहां है, रश लगा हुआ है। साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ पर्सनल प्रैक्टिस में, बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर। एंड हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी में क्या डिस्कस होता है? साइकेट्रिस्ट फ्रेटर्निटी में कितने की ईएमआई सेट है? मेरी तो इतने की सेट है। Nobody is bothering to guide कि आपको मेडिसिन नहीं, काउंसलिंग चाहिए। Rarely people in medicine, they prefer or suggest counseling. But we psychologists, we are trained to tell people, yes, now you need medicine for a week or for 10 days or 1 month, depending upon symptomatic behavior. कितना उनके अंदर मुश्किल आ रही है, उनके ब्रेन हॉर्मोन्स की क्या कंडीशन है। And then we start counseling when they are ready to seek that help, when they are ready to adapt that help. Any question up tak? Thank you, Meenakshi ji, Shubha ji, and so many other people who have agreed and said yes. Shubha ji Yes, has a question. Priyanka, I'm so glad you had said such a wonderful thing. मैंने पहले ही बोला, time नहीं है. People are just running to take medicine because they have no patience to invest their time and money on counseling. वो एक process है, overnight magic नहीं है. Yes, Swati, please. I would like to share here that I feel that I am an example because I went to 2 psychiatrists and I was not right. I didn't want to take the medicine. That's when I came to you. And till date, I have not taken any medicine. I was having that time panic attacks and all. And everything that I am today and how I have controlled my mental health here is all because of you. Oh, thank you so much, darling. Thank you. So, trust is very important. और इसीलिए सीबीटी पार्टिसिपेंट्स को पता होगा जो मैं 3 टूल्स हमेशा कहती हूँ, होप, स्कोप एंड फेथ। डाउट के साथ, डाउट ऑन प्रैक्टिशनर, डाउट ऑन योरसेल्फ, डाउट ऑन प्रोसेस। मेडिसिन पे हम डाउट नहीं करते, हमें शुरू से बचपन से कंडीशन किया गया ना, सदियों से हम कि दवाई खा लो ठीक हो जाओगे, दवाई खा लो ठीक हो जाओगे। किसी से बात करने से कौन ठीक होता है? सो दीज आर द ओल्ड पैटर्न्स, है ना। और इस वजह से फालतू मत बोलो, किसी को जाके क्यों बताना है अपने घर की बात, अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपनी परेशानियां। वो कौन होते हैं इसे सुलझाने वाले? हम तो तुम्हारा परिवार हैं। बच्चों के साथ सबसे ज्यादा ये दिक्कत आती है। I can see that discomfort on Dilroop's face. Ma'am is very eager to overcome overthinking.
Kameshwari ji, as I told you, slowly we are going to reach there. Please give me some time because here everybody is with some different purpose. कुछ लोग CBT को properly समझना चाहते हैं. ठीक है, तो हम वहां भी आ रहे हैं. Just give me few minutes more. Thank you. Would you like to say something, Dilru? If you feel like. Not an obligation. I did want to say something actually. I firstly agree with Swati. Sometimes the main solution is to be heard and to have someone that you can talk with, But initially, we're just taught that medicine is the easier way, and that's what I think. Yeah. That's what I said. That's This all. is our conditioning. This is our actually bringing our environment. And even that is very obvious also. ना कि अगर कुछ चीजें जल्दी से होती हैं, हमारा mental preparation ही वैसा है. But with right awareness, with right exposure, now people are understanding this. That this is very important to take counseling and to understand myself, my inner working patterns, my thinking patterns, and then to heal it for lifetime betterment. But thanks to you, this is my first time doing this, and we had a first session last week, and it was just an hour long. But the problems that I've been having and repeatedly thinking of the same things over and over again, living in the past, not being able to get over them, all those were like gone like a poof, as a magic karke, just because I talked with you, you know. You told me not to live in the past and to not stop doubting myself, कि future में क्या होगा, but and live in the present, तो वो मैं कर रही हूँ and it actually helps. I just needed someone to listen to me and tell me the solutions, and the guidance that you gave me. Thank you so I'm much, very darling. thankful for that. My That's all. pleasure. Always. Thank you, my dear. Thank you. Yes, Mandeep ji. Yeah, good evening, everyone. Sreen ma'am, I'm already doing CBT with you, the full course also. And wow. अभी तक जो मैंने उसमें सीखा और समझा है, उसके अकॉर्डिंग मैं मतलब ये कह सकती हूँ कि काश मुझे आप पहले मिले होते. जिंदगी कितनी आसान होती. मतलब ऐसा भी नहीं है. द लाइफ हैज बीन वेरी गुड. बहुत अच्छा रहा है अभी तक, सब कुछ अच्छा रहा है. बीच में मुश्किलें हर एक की लाइफ में आती हैं एंड आई हैव ओवरकम दोस. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज पहले पता होती तो उन चीजों के लिए मेरा पर्सपेक्टिव, उन चीजों को देखने का मेरा नजरिया शायद थोड़ा सा और बेहतर होता और मेरे लिए शायद उन चीजों को डील करना और इजी हो जाता. और जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स शायद मैं अभी तक भी कैरी कर रही हूँ कुछ चीजों के, शायद वो ना होते. आई विल गिव एन एग्जांपल मैम कि my son, he was around 7-8 years. And we were living in Ludhiana earlier. I had a job over there, so I was in Ludhiana, my husband and us. And somehow things happened. My husband had to shift to the Hoshiarpur, and I stayed there in Ludhiana for another 2-3 years. So my son had a very strong bond with me. And when we shifted to Hoshiarpur and joined the family here with his grandparents and all, after an year or so, my son started having some kind of fits. And उसका होशियारपुर में तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं था उस टाइम पे किसी साइकोलॉजिस्ट का या किसी काउंसलर का. तो जो हमें समझ आया कि एक ही साइकेट्रिस्ट थे यहाँ पर, एक शायद सैनी हॉस्पिटल था या समवेयर. एंड हम वहां पे गए. फिर मुझे पता लगा कि एक कोई चंडीगढ़ से डॉक्टर आते हैं किसी हॉस्पिटल में वंस इन अ वीक. हम उनसे मिले, वो भी साइकेट्रिस्ट थे. वो सभी ने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी. अच्छा, बाय द वे माय हस्बैंड इज अ केमिस्ट, तो उनको थोड़ा पता था. तो ही सेड कि ये तो लाइफ लॉन्ग चलने वाली मेडिसिन हैं एंड आई डोंट थिंक कि ही हैज दिस प्रॉब्लम. और हमने वो मेडिसिन शुरू ही नहीं की. और अच्छा, उनमें से एक साइकेट्रिस्ट ने हमें ये कहा वैसे कि आपके बेटे को मुझे लगता है कि इसको कोई बीमारी नहीं है, इसको कोई और इशू है,
वो भी हमें गाइड नहीं कर पाए कि इसको क्या इशू है, और या उसका जो इशू है उसको डील करने के लिए हमें पेरेंट्स को अपने में क्या इम्प्रूव करना चाहिए या उससे कैसे डील करना चाहिए। मतलब ठीक है, वो टाइम बहुत डिफिकल्ट गया। यहाँ पर होशियारपुर वाज सच अ बैकवर्ड एरिया कि घर के लोग या आसपास के लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि उसको कोई साइकोलॉजिकल इशू आ रहा है। बट आई नाउ अंडरस्टैंड कि मे बी हम दोनों एक साथ थे, यहाँ पर आए, मेरा ध्यान भी बंटना शुरू हो गया, उसको भी कुछ चीजों में सबके साथ अपना वो करना पड़ा। हाँ, एडजस्टमेंट करने में उसको दिक्कत आ रही थी। तो ये सब मुझे लगता है कि अगर उस टाइम मैं सीबीटी जानती या आप उस टाइम इसको इतना मतलब परस्यू कर रहे होते तो शायद चीजें डिफरेंट होती। और इसके अलावा भी मतलब ये तो एक लाइव एग्जांपल था, इसके अलावा भी मैंने जो महसूस किया मैम कि सबसे पहले तो कि फॉर लर्निंग सीबीटी इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट कि हमें हर एक को कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन होना चाहिए तभी हम सीबीटी सीखें। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। आई थिंक मतलब छोटी छोटी चीजों में भी, छोटे छोटे डिसीजंस मेकिंग में या छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करने में इट हेल्प्स अ लॉट। और पेरेंटिंग में मुझे लगता है मैम कि इसका बहुत ज्यादा हेल्प हो सकता है हर एक को, बिकॉज अब मुझे ये रियलाइज होता है कि हम नॉर्मली कहते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स का देखो, उनको अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ ज्यादा प्यार है, उनको हमसे उतना प्यार नहीं होता जितने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ वो अटैचमेंट फील करते हैं। लेकिन मुझे ये अब होता है कि एक्चुअली वो अपनी पेरेंटिंग के टाइम पे जो गलतियां कर चुके होते हैं, एट दैट एज दे रियलाइज कि हम कहाँ गलत थे, और वो उसको सुधारने की कोशिश अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ करते हैं। और मतलब ये वो विद टाइम एंड एक्सपीरियंस वहां तक पहुंचते हैं। विद सीबीटी हम शायद अभी अपने पेरेंटिंग टाइम में वहां पर पहुंच सकते हैं। एंड मैम इस सब के साथ आपके बारे में मैं सबके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी कि जो आपके रियल लाइफ इंस्टेंसेस हैं और इतनी इन डेप्थ नॉलेज और क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, वो जब आप बताती हैं तो कुछ भी ऐसा लगता ही नहीं कि हम कोई डिफिकल्ट या कुछ हम अलग सीख रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये तो हम भी लाइफ में कितनी बार महसूस कर चुके हैं, ये तो हमें मतलब पता था, लेकिन हम इसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे या हमें पता नहीं था कि इसको कैसे यूज करना चाहिए या इसका कहाँ पर इम्पैक्ट आ रहा है। दिस इज रियली वेरी आई रियली appreciate and I'm a big fan of yours honestly speaking. Thank you so much. आप इतना फ्लो में बोल रही हैं, मैं रोक नहीं पा रही हूँ, but we have to proceed further. Thank you so much Mandeep ji. Thank you for your love and trust. Thank you. निधि जी, quickly shortly. हाँ मैम, बस मुझे ये कहना है कि हमें ट्रेनिंग या हमारा जो माइंडसेट है वो तो होता ही है कि दवाई खाओ और चलते बनो, बट एट द सेम टाइम जितना टाइम मैंने हॉस्पिटल्स में निकाला है एज अ साइकोथेरेपिस्ट, उसमें मैंने ऑब्जर्व क्या किया है कि सामने वाला क्लाइंट खुद इंटरेस्टेड ही नहीं होता थेरेपी लेने में। वाई? बिकॉज उसको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। इवन इफ द साइकोलॉजिस्ट रेफर, वो एक सेशन के बाद वापस आके यही बोलते हैं, सर आप ना दवाई दे दो। वहां बैठते हैं, वहां टाइम लग जाता है, मैम हमें कुछ कुछ बताती हैं जो हमें करना पड़ता है। They also want shortcut solutions. They don't want to work on their own selves. So that becomes a very big hindrance. This is why that's why we are trying to spread this awareness in common people also. As Mandeep ji said कि जरूरी नहीं है किसी को mental health problem है तभी चाहिए, किस schools में, educational institutes में, घरों में, हर जगह CBT का awareness होना जरूरी है। That's how everybody will be able to help themselves. तो फिर ये वाले स्टिग्मा भी अपने आप ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे। Why this is so important? Because इसका मतलब ये नहीं कि हम ये प्रोग्राम करवाते हैं तो करके, this is completely evidence based practice. जैसे अभी मैं ओवर थिंकिंग की बात कर रहे हैं, काफी कल से बात कर रहे हैं वो ओवर थिंकिंग की, तो यहाँ मैं एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना चाहूंगी एविडेंस बेस्ड सीबीटी टेक्निक के बारे में। बड़ा रिलेटेबल एग्जांपल है कि अगर घर में आपको एक बच्चा कहता है कि मतलब मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे एंशियसनेस हो रही है, एग्जाम की टेंशन हो रही है, हम उन्हें लेक्चर बेस्ड प्रीचिंग देना शुरू करते हैं। हम तो ये करते थे, हम तो वो करते थे, तुम्हारे को तो इतनी सहूलतें मिली, हम तो बल्ब के नीचे पढ़ते थे, हम तो कैंडल जला के भी नहीं पढ़ते थे, दिए के नीचे पढ़ते थे। लाइक हमारा कोई और ही रूट शुरू हो जाता है। बच्चे मुझे आके बोलते हैं कि मैम हमारा मुद्दा कोई और होता है और डिस्कशन कोई और शुरू हो जाती है।
अब धीरे धीरे वो बच्चा अपने आप में स्ट्रगल कर रहा है और ओवर थिंकिंग आ रही है। सो बच्चा क्या सोचता है, वेन एवर आई ओवर थिंक आई स्टार्ट बिंज वॉचिंग, चाहे वो टीवी है, सॉरी नेटफ्लिक्स है, चाहे वो रील्स है, शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट्स को सर्फ कर ही जा रहे हैं। कुछ बच्चे गेमिंग में जा रहे हैं ओवर थिंकिंग की वजह से। मोस्ट पीपल थिंक आई हैव नो सेल्फ कंट्रोल, या फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि जी मेरा बच्चा एडिक्टेड हो गया है, या मैं ही एडिक्टेड हो गई हूँ स्क्रीन की और मेरे को कंट्रोल ही नहीं है। सीबीटी एक्सपर्ट क्या कहता है, व्हाट फंक्शन इज दिस बिहेवियर सर्विंग इमोशनली। मेरे पास आएंगे तो मैं बच्चे को कभी ब्लेम नहीं करूंगी। एज ए सीबीटी एक्सपर्ट आई विल आस्क बच्चे क्या फील होता है, क्यों ओवरवेल्म है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या डर है अपने उसके पीछे का। सो सीबीटी ब्रेक डाउन, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई द ट्रिगर। तो मैम जब आप ओवर थिंकिंग की बात कर रही थी, आप अपना पहले जो भी एक ट्रिगर आता है, ओवर थिंकिंग रूट कॉज कहाँ है, किसके बारे में सोचती हैं, क्यों सोचती हैं, पहले वहां जाना बहुत जरूरी है। और अगर आप उस ओवर थिंकिंग को किसी अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म से रिप्लेस करने की कोशिश कर रही हैं, तो भी ये समझना जरूरी है कि जैसे ही स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं, जैसे ही नेटफ्लिक्स खोलते हैं, उससे पहले क्या हुआ था। बच्चे का एकेडमिक प्रेशर था, किसी की लोनलीनेस हो सकती है, किसी का घर में रिजेक्शन या अब्यूज हो सकता है, किसी का फियर ऑफ फेलियर हो सकता है, किसी का शायद अपने बच्चों को मिस करना, आइडेंटिटी क्राइसिस, कुछ भी हो सकता है, या फिर अपनी एक बहुत ही रिलेशनशिप का कोई कंसर्न हो सकता है, एनी डिजायर, एनी अर्ज। तो हिडन इमोशनल एस्केप समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बिंज बिहेवियर खासकर बच्चों में इट इज नॉट बैडनेस, इट इज ऑफन डिस्ट्रैक्शन, इमोशनल नंबिंग, टेम्परेरी डोपामिन रिलीफ जिसे हम इंस्टेंट डोपामिन किक बोलते हैं, और वो अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन जो घरों में चलती है उसे अवॉइड करना है, कम से कम चिक चिक तो नहीं सुननी पड़ेगी। अब जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें ट्रिगर क्या था, एग्जाम प्रेशर या परफॉर्मेंस प्रेशर। थॉट क्या आई बच्चे को, टी साइकिल अगर देखें, व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ आई फेल। अब उसका फ्रेंड कहेगा यार तू तो हमसे भी इंटेलिजेंट है, सिस्टर कहेगी इतना तो पढ़ता रहता है फिर भी तो क्या सोचता है व्हाट इफ आई फेल। फीलिंग इज एंजाइटी एंड ओवरवेल्म, फीलिंग इज नॉट एक्चुअली सेल्फ डाउट। और कोपिंग बिहेवियर क्या करेगा, या तो सोया रहेगा, या फिर 6 घंटे की गेम और रील, या फिर जंक फूड। टेम्परेरी रिलीफ बिकॉज माइंड गेट्स डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट टेंशन, बट लेटर कॉन्सिक्वेंसेस, गिल्ट, लेस स्लीप, वेस्टेज ऑफ टाइम, पढ़ने में भी मन नहीं कर रहा, और एंजाइटी हो गई, फियर और बढ़ गया। तो सीबीटी में हम उन्हें इंटरवीन करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं टू सर्व दिस सर्च इंस्टेंटली रिएक्टिंग की बजाय, जैसे अक्सर पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स करते हैं। यहाँ पे बच्चा सीखता है पॉज एंड ऑब्जर्व द अर्ज लाइक ए वेव। जैसे समुद्र में लहरें आ रही हैं ऐसे अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करिए। ओवर थिंकिंग में भी हम यही कहते हैं कि जैसे एक आसमान है उसमें क्लाउड्स होंगे, दैट इज अ स्पेस फॉर क्लाउड्स, ऐसे ही माइंड इज अ स्पेस फॉर थॉट्स। वो कहीं और नहीं जा सकती, उनका तो घर है। लेकिन कल हमने बात की थी एक ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट की, कि वो एंट जब भी अटक जाती है तब हमारी सटक जाती है, फिर स्पाइरल में हम और बहुत सारी एंट्स को इनवाइट कर लेते हैं। तो ओवर थिंकिंग इज व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन ए टॉपिक, एन इशू, एक प्रॉब्लम, एक फैक्टर, एक पर्सन, एक इवेंट, बार 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 बार। और रेपिटेटिव बिहेवियर इज ए हैबिचुअल बिहेवियर। तो अगर आप वरी करी जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग करी जा रहे हैं, तब आप उसमें फंसते जाएं। सो इमीडिएटली कुछ भी लूप में जाने से पहले अपने आप को पॉज करिए, स्टॉप, ऑब्जर्व एंड देन टेक योर ओन टाइम। ब्रीदिंग करें या हम जर्नलिंग करें, आगे हम एक्टिविटीज पे, उस पे स्ट्रेटेजीज पे आ रहे हैं धीरे धीरे। आई होप आई एम साउंडिंग लॉजिकल। सो एविडेंस बेस्ड हम लोग चलते हैं, हर एक इंडिविजुअल पर्सन की इंडिविजुअल प्रॉब्लम और उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्या क्या फैक्टर पॉसिबल हैं
रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एंड उसके बाद जब भी हम टेक्निक्स की बात करते हैं, यहाँ मैं प्रोफेशनल्स को एक टर्म बताना चाहूंगी कि सीबीटी की बहुत सारी टाइप्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। कोई थिंकिंग को एड्रेस करती है, कोई फीलिंग को, कोई एक्शन को, और जो मिक्स चीजें यूज करते हैं, एज आई यूज सो मेनी स्टोरीज, मेरे पार्टिसिपेंट्स को पता है, स्टोरीज, पर्सनल एग्जाम्पल्स, इधर की बात उधर की बात, कोई कहीं से टेक्निक उठा ली, कोई कहीं से, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन सिटिंग बिफोर मी। मैं अपने प्रोग्राम्स में भी पूछती होती हूँ कि भैया मेरा तरीका थोड़ा अलग है, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू कनेक्ट टू हार्ट्स रादर देन शोइंग माई ओन एक्सपर्टीज कि सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 मुझे तो इतना पता है, और यूजिंग हैवी टर्म्स। सॉरी, हीलिंग हैवी टर्मिनोलॉजी से नहीं होती। हीलिंग एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, नॉकिंग नॉकिंग नॉकिंग, अभी किसी ने बोला था ना, बहुत अच्छा वर्ड मुझे लगा कि उस डॉट को जाके नॉक तो करो पहले। फॉर एग्जाम्पल, ओवर थिंकिंग जितने भी लोग करते हैं उनको मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। रेडी है? लाइव चल रहा है तो बाद में करूंगा। रेडी? आज तो चैट पे लिखा ही नहीं किसी ने रेडी 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 रेडी। अरे रे, आज तो मैं ही बोल रही हूँ, सब सो तो नहीं रहे। बट आई एम सो ग्लैड टुडे मोर पीपल आर ऑन वीडियो। लव यू ऑल। थोड़ा सेल्फ लव दिखाइए, सब लोग वीडियो पे आइए। सो ओवर थिंकिंग में, जी अनुराधा जी प्लीज। अनुराधा जी रेज्ड हैंड। ओके, सो स्टोरी पे आते हैं। यस प्लीज। I can't see. नहीं, I think हाँ, I thought you were saying something to me. नहीं, आपने हैंड रेज किया तो मैंने नहीं, वो रेडी नहीं लिख पा रही थी तो मैंने हैंड रेज कर लिया था। अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो एक बार एक बहुत ही हीनियस क्रिमिनल को फांसी की सजा हो जाती है। तो 2 दिन होते हैं उसको फांसी लगने में। ही वॉज डिक्लेयर्ड लाइक टू बी हैंग टिल डेथ। और एक सिरफिरा साइकोलॉजिस्ट मेरे जैसा, वो एक न्यूज चैनल भी, न्यूज़पेपर चलाता है, तो उसके मन में आता है कि मैं इसका इंटरव्यू लेने जाऊं, पूछूं भाई इसके मन में क्या चल रहा था। एंड ही रियली वांट टू डू सम रिसर्च आल्सो टी साइकिल को चैलेंज करने के लिए। क्या सच में टी साइकिल सीबीटी का इतना स्ट्रांग है? क्या थॉट का एक्चुअली इतना इम्पैक्ट आता है इमोशंस पे? और क्या इमोशंस एक्चुअली हमारी बॉडी को और हमारे एक्शंस को इतना इन्फ्लुएंस करती हैं? तो वो चला गया जेलर साहब के पास, इन्फ्लुएंस लेके, कार्ड लेके, रेफरेंस लेके कि मुझे उसको मिलना है, मुझे उससे बात करनी है। तो वो बोलते हैं भाई ये तो बहुत खतरनाक बंदा है, ये तो हमारे जो गार्ड्स हैं वो भी बहुत डरते हैं उससे, उसको तो खाना देने जाते हुए भी डरते हैं, वो तो बहुत ही खतरनाक है, तो हम अलाउ नहीं कर सकते, वी कांट टेक दैट रिस्क। और सोचता है जुगाड़ क्या करूं। फिर वो कहता है अच्छा मैं आपसे एक सपोर्ट चाहता हूँ, मैं कोई रिसर्च करना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे उसमें सपोर्ट करेंगे? वो कहते हैं बताओ, जितना हम कर सकेंगे जरूर करेंगे। वो कहता है आप उसको सिर्फ ये जाके बोल दो कि भैया तुम्हें अब परसों ना फांसी नहीं होगी, तुम्हें कोबरा से डसवाया जाएगा। जेलर कहता है मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, जब उसको फांसी होनी है मैं क्यों झूठ बोलूं। कहता है फांसी ही दोगे उसको, बस मैंने आपको सिर्फ उसे बोल दो, और उसका बिहेवियर उसके बाद अगर कोई चेंज होता है तो मुझे आपने अपडेट करना है। अपने गार्ड को बोलिए रेगुलरली ऑब्जर्व करे कि उसका बिहेवियर चेंज होता है कि नहीं। वो कहते हुए ठीक है, अब इतना बड़ा रेफरेंस लेके आया है और मिलने भी नहीं दे रहे, तो कह देते ठीक है। एक गार्ड जाके उस क्रिमिनल को बोल देता है कि भाई साहब तुम्हारी फांसी की तो जो सजा थी वो हो गई कैंसिल, लेकिन खुश होने वाली बात नहीं है, अब तुम्हें कोबरा से डसवाया जाएगा, तब तुम मरोगे। और जैसे ही उसको ये स्टेटमेंट सुनने को मिलती है, इमीडिएटली उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, वो बहुत रेस्टलेस हो जाता है। जो गार्ड खाना देने गया था और उसने उसे बताया था, वो खाना भी सरका देता है, जबकि वो ज्यादा खाना की डिमांड करता था, इतना ह्यूज था वो। पूरी रात वो सोता नहीं। गार्ड ऑब्जर्व करते हैं कि पूरी रात वो टहलता रहा, घबराया रहा, और फिर उस
अगले दिन साइकोलॉजिस्ट फिर पहुंच गया। अब जेलर साहब कहते हैं कि भैया उसको बता दिया है। कहते हैं हाँ मेरे को बताइए क्या क्या फीडबैक है। फीडबैक देते हैं उसको कि वो रेस्टलेस है। कहते ठीक है, मैं एक कोबरे वाले को लेके आया हूँ, इसके दांत नहीं है, आप सिर्फ एक कोबरा ये ले जाके ना उसको दिखा दो कि देख कोबरा आ गया, अब कल सुबह फांसी के टाइम पे तुझे यही डसेगा। तो गार्ड ले जाता है और वो कोबरा दिखा देता है उसको टोकरी में से, देख कोबरा आ गया, तेरा सोल्यूशन आ गया, अब तेरा काम कल खलास। और भी ज्यादा वो परेशान हो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह उसको सेल में ही आंखों पे काली पट्टी बांध दी जाती है और वो एक दूसरे से बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट के कहने पे, ले आओ भाई ले आओ कोबरा। लेकिन कोई कोबरा नहीं होता वहां। उसके उंगली में एक छोटी सी पिन चुभाई जाती है, सिंपल सेफ्टी पिन, एंड रिजल्ट he died on the spot. साइकोलॉजिस्ट ने उसकी केस स्टडी हिस्ट्री पढ़ी, उसके बारे में सारी खोजबीन की, क्योंकि वो बड़ा मशहूर और बड़ा हार्डकोर क्रिमिनल था। तो उसको समझ आया कि वो उसको कोबरा से बहुत फोबिया है। वो किसी से नहीं डरता, लेकिन स्नेक्स और कोबरा, स्पेशली कोबरा से उसका बचपन का फोबिया है। और उसने उसी को यूज किया ये चेक करने के लिए कि जब भी वो उस फोबिया के बारे में सोचता है तो उसके अंदर क्या इम्पैक्ट आता है। एंड दिस इज द रियल स्टोरी यूएस की जेल की। अब जब उसका मेडिकल टेस्ट किया गया, इंटरेस्टिंगली उसके ब्लड में पॉइजन भी पाया गया। What do you understand by this? As per T cycle, as per hormonal discussion जो हमने कल की, brain hormones, who would like to say something in short, meaningful? Anybody? May I, ma'am? जी सर। It is more like a placebo effect, जहां पर उसके सबकॉन्शियस ब्रेन ने इस चीज को अंडरस्टैंड किया और वही जो पॉइजन वाला जो केमिकल है वो जनरेट किया उसकी बॉडी में, जिससे उसकी डेथ। Very good. Thank you, Dr. Prem. Thank you so much. Can I also share? Yes, please. हाँ जी. It was more like a manifestation also. जैसे हम कहते हैं positive thought के manifestation, वैसे similarly for the negative thought manifestation. I think it can be something like that as well. Because I can relate it with myself as well. क्योंकि कुछ टाइम पहले मुझे डॉक्टर ने कहा कि I might have some problem related to my heart. तो अब मैं बाकी सब जगह दिखा चुकी हूँ, इट्स मोर लेस ओके, बट मेरे दिमाग में वो आया हुआ है कि उन्होंने बोला है तो पक्का कुछ प्रॉब्लम है, इररिस्पेक्टिव कि मेरे ऑल माय टेस्ट एंड एवरीथिंग इज फाइन। तो एक ये वहम से आई थिंक वी काइंड ऑफ मैनिफेस्ट ऑल द सिम्टम्स, ऑल द प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल। So whenever we manifest or whenever we placebo effect जो सर ने बोला है, it is all about power of thoughts. Yes, Khushi, please. Good evening, ma'am. I would like to say कि some stories से ये पता लगता है कि कई बारी चीजें हमारे साथ होती भी नहीं वैसे, और हम वो ऐसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि वो बार बार वही चीजें आती है जो जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो एक्चुअली हमारे साथ हो रही है, बट ऐसा होता नहीं है। So overthinking is kind of that वही चीज है कि लाइक कुछ होता नहीं है बट हम सोचते रहते हैं। So instead of finding any solution, any therapy, any techniques और कुछ भी, हम उस चीज को बार बार सोचते रहते हैं और वो हमारे माइंड में ऐसे बैठ जाती है जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स होती हैं एंड अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम्स आती है फिर। Yes. So these bundle of thoughts related to that fear or assumption or negativity create negative hormones. जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वो हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता रहा, वो घूमता रहा जेल में उतनी देर, कोबरा, उसकी पेन, उसका फियर, उसका फोबिया, सब कुछ एक्यूमुलेट होता गया। ना उसका खाने का मन किया, ना उसका ध्यान हटा,
और सिर्फ एक पिन को उसने कोबरा का डंक समझा। जी भावना मैम। मैम जैसे माइंड हमारा सॉफ्टवेयर है और ब्रेन हमारा हार्डवेयर है, अब हम पे डिपेंड करता है कि हम उसके अंदर क्या लोड कर रहे हैं, वो वैसा रिएक्ट करना शुरू कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much, and we are so proud to have Bhavna ji with us because she is such a beautiful वो जो कहते हैं ना manifestation की बात कर रहे थे, power of affirmation की हम बात करते हैं। She is expert in practical techniques कि वो manifestation को कैसे change करने में help करती हैं। Thank you Bhavna ma'am, we are proud of you. So CBT कैसे help करती है ऐसे cases में? Yes Monica. Hi ma'am, how are you doing? Ma'am, इस particular case में ma'am, I believe because I have personally undergone certain things which I believe कि over the period, जैसे आपने इसे केस में बताया कि कोबरा was a trigger for him already throughout his life. अगर उसे कोबरा की जगह कुछ और बोला जाता, कोई और इंसेक्ट, कोई और एनिमल या कोई और स्नेक का ही नाम वैरायटी का बोल दिया जाता तो उसने इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बिल्कुल। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम अपनी लाइफ में एक ट्रिगर डेवलप कर लेते हैं, और वही ट्रिगर जब हमारे लिए इतनी एक्सट्रीम केसेस में, एक्सट्रीमिटीज में हमारे सामने हम उसे फेस करने के लिए एंटिसिपेट करते हैं, तो हमारा माइंड उसके लिए कभी रेडी नहीं होता एंड इट्स लाइक जैक्ड, पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। तो उस वजह से आई बिलीव कि उसके अंदर वो हार्मोनली, साइकोलॉजिकली और जो उसकी बॉडी ने जो ये रिएक्ट किया वो उसी वजह से। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया सीबीटी में फर्स्ट वी कम टू नो अबाउट आवर ट्रिगर्स, और जिसको अपने ट्रिगर्स का पता है, इसकी अवेयरनेस है, ओनली दैट पर्सन कैन वर्क ऑन दैट। Exactly. Beautiful. Thank you so much, darling. Thank you. And you know, thank you so much, ma'am. Thank you. Before we close, we need to understand mood scale quickly. तो स्केल आपने देखा है बहुत सारे, है ना? डिजिटल स्केल देखते हो आप। स्केल एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर एक सुई घूमती है कि स्केल पे हम वेट देखते हैं। सबसे ज्यादा आजकल परेशान करने वाला वेइंग स्केल होता है ना? मुझे तो बहुत परेशान कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि मैं इतनी स्टेशनरी हो गई हूँ और मेरी मूवमेंट इतनी रिस्ट्रिक्टेड हो गई है कि मेरी बॉडी अदरक की तरह बढ़ रही है। तो अब मैं कोशिश मेरा स्केल कराए इससे पहले हम मूड स्केल पे आ जाते हैं। तो किसी भी स्केल में जब हम बैलेंस की बात करते हैं, हमें पता है कि हर स्केल का बैलेंस जो है वो सेंटर में होता है, और डिजिटल स्केल को हम 0 से मार्क करते हैं। लेकिन जब हम मूड स्केल की बात करते हैं, तो जब भी हम बैलेंस्ड हैं, बिल्कुल ओके हैं, आई एम फाइन कहते हैं, इट मीन्स एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल, ऑल इज इन कंट्रोल, नो ट्रिगर। ट्रिगर है भी तो हम ट्रिगर को ट्रिगर कर देते हैं, पर हम नहीं होते। पर जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब अनफेवरेबल, अनप्रेडिक्टेबल, इरेशनल थॉट्स आ जाती हैं, कोई ऐसी अनहोनी हो ही जाती है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की होती, तो हमारा ये स्केल हिल जाता है, मूड खराब हो गया। तो हम सब लोग अलग अलग कैटेगरी में मूड की जोन में चेंज होता है, ये स्केल हमारा अलग अलग दिशा में जाता है। कुछ लोगों का टेम्परामेंटल ट्रेट ऐसा होता है कि वो लो मूड में चले जाते हैं, डीप डाउन द वैली, अंधेरे में चले गए, होपलेस, वर्थलेस, यूजलेस, रिजेक्शन, विड्रॉल, कोई एक्टिविटी करने का मन नहीं है, उठने का मन नहीं है, खाने का मन नहीं है, हाइजीन भी नहीं है, धीरे धीरे डार्क वैली में खोते चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जब भी वो परेशान होते हैं, जब भी वो ट्रिगर्ड होते हैं, they go into high phase, they just climb the mountain, ऐसे वाला फेज होता है। half day, shout, frustration, complain, blame, fights, irritation, anger, harming others, harming self। और दूसरी तरफ वो लोगों को अगर टाइमली लो वैली से ना निकाला जाए तो उनको सुसाइडल आइडिएशन और सुसाइडल थॉट्स आती हैं। इधर अगर इनको जल्दी से उस पहाड़ से नहीं उतारा जाए तो फिर सेल्फ हार्म, नॉन सुसाइडल सेल्फ हार्म टेंडेंसी शुरू हो जाती। तो जब हम लो फेज की बात करते हैं, देन वी कॉल्ड, इसको हम मूड डिसऑर्डर्स बोलते हैं। मूड डिसऑर्डर्स में बहुत अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं।
लो मूड में जाते हैं तो हम उसे डिप्रेसिव एपिसोड बोलते हैं। इट्स नॉट ओनली डिप्रेशन ऑल द टाइम। डिप्रेशन के इतने सारे कलर्स हैं, डिप्रेशन की इतनी सारी स्टेट्स हैं, डिप्रेशन के इतने सारे जोन्स हैं जो हम सीबीटी प्रोग्राम में समझते हैं। इसीलिए यहाँ बैठ के आज किसी को भी डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग या फिर एंजाइटी का कोई सोल्यूशन देने हम नहीं आए हैं। हमारा काम मिसलीड करना नहीं है। हमारा काम है कि हम पहले आपको प्रॉपर एजुकेट करें, अवेयर करें, आप अपनी टाइप समझो, उसके बाद सोल्यूशन उठाओ। और यही हम समझाते हैं सीबीटी के प्रोग्राम में कि डिप्रेशन के कितने जोन्स होते हैं। एंजाइटी जो हाई स्टेट है उसको हम एंशियस जोन बोलते हैं। इस एंशियस फेज में एक स्पेक्ट्रम है जिसे हम एंजाइटी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। एक्चुअली एवरी एंजाइटी इज नॉट सेम, और इस एंजाइटी स्पेक्ट्रम पे कम से कम 8 से 9 अलग अलग तरह की एंजाइटी टाइप्स हैं और सबके सॉल्यूशन अलग अलग हैं, बट हैं इसी सीबीटी बंडल में। ठीक है। और कई लोग थोड़ी देर तो लो होते हैं, एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं, जिसको आप कहते हो मेरे बच्चे का तो मूड स्विंग पूछो मत। आज मैं एक बड़ी सुंदर रील देख रही थी लंच टाइम में, बड़ा क्यूट कपल, और लड़का रील बना रहा है हनीमून पे। मैंने जेनजी की एक लड़की से शादी की है भैया, मुझे तो इसके मूड पता नहीं चलते, पल में रोती है, पल में हंसती है, मिनट में इसे भूख लगती है, मिनट में इसका मन भर जाता है। और फिर इतने सारे सपने हैं, इतना सारा विजन क्लियर है, पर काम करते, थोड़ा सा काम करके थक जाती है, और फिर अलग अलग तरीके से रेस्ट करके भी ये थक जाती है। तो जब हम इन मूड स्विंग्स की बात करते हैं, वो वैसे लोग होते हैं जो दोनों जोन्स में स्विंग कर रहे हैं। एकदम खुशी, एकदम लो फेज, एकदम एक्साइटमेंट, इतनी मोटिवेशन आ जाती है कि खूब सारा काम इकट्ठा कर लेना है, और 4 दिन फिर कुछ नहीं करना। इन लोगों को हम बोलते हैं बाइपोलर कैटेगरी, कि कभी लो कभी हाई। लेकिन बाइपोलर में भी इतनी जल्दी एज्यूम नहीं करना चाहिए। उसके लिए भी हमारे कुछ क्वेश्चनियर्स, कुछ असेसमेंट टूल्स होते हैं जो हम सीबीटी प्रोग्राम्स में प्रॉपरली बताते हैं। डिप्रेशन का असेसमेंट, एंजाइटी के असेसमेंट, और फिर इनके असेसमेंट। तो चाहे आप किसी भी जोन में जाओ, लो में, हाई में, सबसे पहले नेगेटिव सेल्फ टॉक स्टार्ट होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम अपनी नेगेटिव थॉट्स का स्पाइरल एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा शुरू करते हैं। और ये एक प्रूवन फैक्ट है कि जब भी इंसान डिस्ट्रेस में होता है, अच्छा फील नहीं कर रहा, ओके स्केल पे उसका बिंदु हिल गया है, तो वो अलग अलग नेगेटिव बिलीफ बनाएगा अबाउट सेल्फ, अबाउट वर्ल्ड, अबाउट फ्यूचर। कुछ भी ब्लेमिंग अदर्स, ब्लेमिंग सेल्फ, कोई भी रैशनल थिंकिंग काम नहीं कर रही, क्योंकि कल हमने ब्रेन फॉग समझी। ब्रेन फॉग क्या होती है, और अब इस ब्रेन फॉग को कैसे हटाया जाए, कल बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन से हम स्टार्ट करेंगे। साइकोसोमैटिक सिम्टम्स। आज हर इंसान बीमार है। आपको पता है, अगर आप मेडिकल फ्रेटर्निटी से बात करो तो पहले कैंसर पिछले दिनों हाईएस्ट रेटिंग डिजीज थी। कंप्लेंट, किन कंप्लेंट के साथ लोग आ रहे हैं डॉक्टर्स के पास, हॉस्पिटल्स में? अब सबसे हाईएस्ट रेट है साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स। शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकली शरीर इज कंप्लीटली फिट, बॉडी इज फाइन, दिस मशीन इज नॉट फाइन। तो जो यहाँ से सोच रहा है, जो यहाँ इमोशंस ड्रिल हो रहे हैं, वो सब बॉडी में हार्मोन्स जा रहे हैं, और बॉडी के ऊपर अलग अलग तरह के सिम्टम नजर आ रहे हैं, जबकि वो है नहीं। तो ट्रीटमेंट बॉडी का नहीं, माइंड का चाहिए। तो ये कैसे होता है, क्यों हमारा ब्रेन और बॉडी कनेक्टेड कैसे हैं, और कैसे थॉट जो है वो बॉडी को भी डेफिसिट दे सकती है, कल यहां से शुरुआत करेंगे और चलेंगे सॉल्यूशंस की तरफ। होप गुड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। लेकिन ग्रुप में मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आपका, बहुत ऑब्लाइज फील करूंगी अगर आप अपने टेक अवे शेयर करेंगे। आज आपने क्या समझा, आज आपको कौन सी एक बात छू गई, अच्छी लगी, बल्ब ऑन मोमेंट मिला?
Thank you, Sunita ji. Thank you, Neeta ji. Thank you. Thank you. Yes, Shraddha ma'am, please. मैम आपने एक चीज बोली थी कि कोपिंग मैकेनिज्म, तो कोपिंग मैकेनिज्म कैन बी सम एडिक्शन आल्सो. Can be some एडिक्शन. एडिक्शन हमने बात की ना, एडिक्शन ही होती है जैसे स्क्रीन स्क्रॉल करना या फिर कोई अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, बिंज वॉचिंग करना, वो भी एक कोपिंग मैकेनिज्म है. अनहेल्दी है, नॉट हेल्दी बट अनहेल्दी. कल हम थोड़ा सा कोपिंग मैकेनिज्म और ट्रीटमेंट में भी बात करेंगे कि सॉल्यूशन और कोपिंग मैकेनिज्म में क्या फर्क है. थैंक यू सो मच. Thank you, Meenakshi ma'am, for your wonderful. Thank you. Thank you, everyone who pour out your heart and share your experience. Thank you, ma'am. Thank you, so Sween much, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Sween ma'am. And before we move to day 3, I do want to say to everybody that Sween ma'am's classrooms are where therapy begins automatically. They are therapeutic. So CBT, when you learn the CBT course, you actually benefit also out of CBT. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ji. See you tomorrow. See you. Thank you so much, ma'am. Thank you, Manju ma'am. Thank you, Lakwinder ji. Thank you, Dr. Sharma. It's my humble pride to have you here. Thank you. Yes, Khushi. I think. Ma'am, sorry, I will take a minute. Like you said, coping mechanism is a negative thing. So हम सबके साथ ये सब होता है, मेरे साथ भी होता है कि like whenever something bad happens in the family or any kind of thing, तो ये होता है कि अपना distract करना, and it's you said ये गलत है. So can you please tell me some kind of solutions? जैसे क्या ये कर बच्चे सकते हैं? हमेशा गलत नहीं है. सपोज आप रिएक्टिव हो रहे हो, रिएक्टिव होने की बजाय आपने स्क्रॉल करना शुरू कर दिया या फिर आपने टीवी चला के कोई सीरीज देखना शुरू कर दिया, देन इट इज ए हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म. कोपिंग मैकेनिज्म हेल्दी और अनहेल्दी दोनों होते हैं. लेकिन अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ से या ट्रिगर से परेशान हो, उसका सोल्यूशन ना करके अपने आप को कहीं और उलझा रहे हो, एडिक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म, when you are then getting addicted to that coping mechanism and you are not working on problem, then it is unhealthy. जैसे अभी जब मुझे बहुत स्ट्रेस होता है, जब मुझे बहुत परेशानी और घबराहट होती है या कोई एक चीज मुझे हॉन्ट कर रही है, तो मेरे को उस वक्त लग रहा है कि कोई सोल्यूशन तो हो नहीं सकता. आई रियली वांट टू गेट रिड ऑफ दिस कांस्टेंट थिंकिंग. फिर मैं पीपीटी खोल के कोई नया प्रोग्राम डिजाइन करना शुरू कर देती हूँ, बिकॉज दैट इज माई पैशन. आई लव दैट. रादर देन नेटफ्लिक्स देखना या फोन स्क्रॉल करना या किसी की फेसबुक देखना, वो मुझे नहीं पसंद. मुझे वो पसंद है, बट दैट इज ऑल्सो कमिंग आउट एज ए प्रोडक्टिव. कोई ना कोई मेरी चीज प्रोडक्टिव हो रही है और मेरा ध्यान उस बात से हट गया. नाउ अब आप बताओ, ये हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है या अनहेल्दी? Healthy, obviously. Yeah. Thank ठीक you है. so much, ma'am. Yeah. Anybody else? थैंक यू नफीसा जी. कोई और मैम बहुत अपनी अच्छी बात करना रिवीजन हो गई है. हाँ जी, बहुत अच्छी रिवीजन हो गई है. बहुत अच्छा दोबारा से हो गया. अरे रियली वेरी हैप्पी. वंडरफुल सेशन. थैंक यू वेरी मच मैम. थैंक यू. थैंक यू जी. शुभा मैम. Good evening, Dr. Sween. It's always a pleasure to see younger children in your sessions, because I feel that that's so important to give the CBT tools to them. Yes. And so that, they're able to tackle it. So thank you on their behalf, actually. Thank you, ma'am. Thank you. Love you for your generosity always. Thank you. Anybody else who wants to ask something or share something if you are not comfortable in a large group? So we can have another 5 minutes, no worries. अगर अभी आपको कुछ बात करनी है, आप कर सकते हैं. चलिए, तो अभी आप ग्रुप में टेक अवे जरूर शेयर करिएगा. जी प्रीति मैम. I would not take long, but definitely
Thank you for, as Shivam ma'am said, strong revision, and we come back to this. And as we discuss the case, what Dilroop said, you know, I'm also blessed that, you know, one of my young girls who was in my team at the airport, she came back to me, she called me a few days back, and she could really confide. Matlab, she was in a very wrong relationship in the new airline or whatever. एंड जैसे दिलरूप ने कहा कि वो सिर्फ एक बोलना बात करना ही सोल्यूशन था. सो दैट इज व्हाट फॉर दैट गर्ल इट वाज अ मेजर solution, you know. She spoke to me for hours, like, you know, for 2-3 days for us. Of course, she's not my client. She's my girl who has worked for me in a team, and, you know, and she could still come to that leader that, you know, कि मैम मैं आपसे ही कर सकती हूँ और मैं अपने इवन फ्रेंड से भी नहीं कर सकती, because I am in what type of relationship they would not understand. Exactly. So it's very important that, you know, I just like, of course, और बच्चे हैं, मतलब, you know, they are in touch, but still the way she came with her problem, because she is all alone now. Her family had moved to Canada, and she had, I mean, already been from Chandigarh. She had been staying here in Delhi all alone. So she felt quite lonely. So I do not know what would have been the impact later if she would have not found a solution or somebody to listen to. Because उस बच्ची को सिर्फ वो 3-4-5 घंटे सिर्फ उसको बोलने का चाहिए था, उसको बताने का चाहिए था कि वो 2 साल से क्या हो रहा है उसके साथ, और फिर 4 महीने से क्या हुआ है. And of course, I did not give her any techniques, nothing, as of now. As of now. But it was just that, you know, I was there. You could call at night, morning, message me, whatever. And because I could understand she's Sadani, she had that background, I could divert her to Gurdwara, the Seva side. Yes. So I was like, before I tell you something to do which you would not be able to accept, because you are still in that state where it's everything is around that person. So, you know, definitely what Dilroop said, it's absolutely correct. I can understand that, you know, where Dilroop must be coming from and where you could be. So, you know, absolutely, this is I still remember that oath which was given at the child psychology course. So yeah, thank you. We are blessed. As Meenakshi ma'am said, we are blessed that we are Thank here you. and Thank we you, could ma'am. connect you. Thank you for contributing, and without any conditional approach, unconditionally you are giving that space to people around you. That is actually a blessing, and I'm so proud of my Shiros. Thank you. Even Akash has written something in the chat. Yeah. Yes, Dilroop, you want to say something? Yes, I want to share a little clip of our moment that we had in our first session with everybody. I initially came to ma'am to talk about something else, but we ended up talking about my past a lot, and then हम हंस के बोले कि ये निकालना जरूरी था. And then I told her कि metaphorically कि आप मेरे rainbow अभी, कि when in life you see how cloudy it gets, you know, and कभी कुछ मुश्किल आ जाती है तो you feel like कि कभी धूप दिखेगी नहीं, as you know, when you are going through something. तो जब हमने वो बात करी उसके बाद मैंने उनको बोला कि आप सच में मेरा रेनबो, अब मुझे आप मिल गए हो तो मुझे अच्छा लग रहा है कि ओ सूरज निकल आया बाहर वापस ना. तो this made me feel as if कि अच्छा ये मुझे चाहिए था. I didn't even know what CBT was, and ma'am told me कि ये कोर्स चल रहा है, you should take it. And I told her on the first day कि मुझसे नहीं आएगा due to some reason. But फिर भी मैंने हिम्मत करके बोला कि चलो कोई बात नहीं, I should give it a try. And अभी I am on my second day, and मुझे अभी ये करके ऐसा लग रहा है कि I was told about this at the right time, and I am, you know, I am seeing, I'm learning at the very right time. I was, you know, suffering पहले थोड़ा सा, but you know, sometimes you get things in life that are needed
और बहुत टाइम पे मिल जाती है तो वो आपको वो बेटर फील कराती है। तो आपने मुझे बेटर फील कराया है। Thank you, Bacha. Thank you so much. And you know, it is your power to seek that facilitation and then acknowledge that and then apply that. From the very first day, we just met once and you were so keen to apply whatever we discussed and you could see the results. And Akash, she is the live example before you. हम कहीं से भी निकल के अपनी नई डायरेक्शन में पहुंच सकते हैं बच्चे, with the right help, with right strategies and with right tools. And CBT is definitely one of them. ठीक है, जहां आप खो गए हो वहां से निकल के एक सही रास्ते पे आना पड़ेगा। हम खड़े हैं वहीं मोड़ पे ही खड़े हैं आपका हाथ पकड़ने के लिए। डोंट वरी। आपसे बात करके लगा कि कुछ है ही नहीं है प्रॉब्लम, इट्स वेरी टाइनी। जो इतना बड़ा पहाड़ लग रहा था, नाउ इट्स वेरी मिनिमाइज्ड, सो आई थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। यस, चलिए मिलते हैं कल day 3 पे, and hope if you have still any questions, anybody can text me individually. Lots of love to all my fraternity. Thank you so much for being here and spending time, sparing your precious time to support us here. Thank you so much. See you tomorrow. Bye bye. Thank you, Sreen ma'am, for another lovely evening filled with learning. Thank you.